اس لیے آپ تمامی حضرات تھوڑی ہی دیر سنیے لیکن طبیعت کو لگا کر کے سنیے اور یہ مزاج بنا لیجئے کہ کچھ نہ کچھ عمل ہی کر کے جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر میں آقا نعمت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بات بندہ عمل کر لے، ایک بات صرف، اور رات بھر آدمی عبادت کرے، رات بھر آدمی عبادت کرے اور ایک بات عمل کر لے، صرف ایک بات، تو رات بھر کی عبادت سے یہ عمل کرنا ان کا بڑھ جائے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات یہ مزاج بنا لیجئے کہ کچھ سیکھ کر کے جائیں گے، کچھ لے کر کے جائیں گے۔ آدمی حوصلہ نہ ہارے پریشانی میں، ہر بنا کام بگڑتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کے نگہبانی میں۔ حضرات، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار مدینہ علیہ السلام نے دمشق بھیج رہا ہے، دمشق۔ دیکھیے یہ سنت کا مقام کتنا بڑا ہے، اس کا رتبہ کتنا بڑا ہے، جو آج ہم لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے نہیں، پہلے کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر پاتے، سوتے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھ کر کے نہیں سو پاتے ہیں، نہ اٹھنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا دھیان دے کر کے بات کو سماعت کرو اور سنو۔ دمشق جا رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 فرد کو لے کر کے، 4 آدمی کو لے کر کے دمشق جا رہے ہیں اسلام کی اشاعت کے لیے۔ فاروق اعظم جب دمشق پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کفاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کفاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مقابل کیسے ہو پائے گا، جنگ کیسے ہو پائیں گے؟ لہٰذا فاروق اعظم دعا کر کے اپنے سپاہی کو میدان میں اتار دیتے ہیں، اور اتارنے کے بعد یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں سنو، دیر نہیں لگانا سر کاٹنے کے لیے، تاخیر نہیں کرنا سر کاٹنے کے لیے، 2 گھنٹہ کا وقت دے رہا ہوں، یہ 2 گھنٹہ کے وقت میں ان تمام کا سر کو کاٹ کر کے زمین پر لٹا کر کے مدینہ چلے چلنا ہے۔ لہٰذا فاروق اعظم کی بات کو سن کر کے وہ سپاہی تلوار لیتے ہیں اور میدان جنگ میں اتر جاتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ 2 گھنٹے کا ٹائم فاروق اعظم نے دیا ہے، لیکن 2 گھنٹہ کیا ہے، 3 گھنٹہ گزر گئے، 4 گھنٹہ گزر گئے، 5 گھنٹہ گزر گئے، شام ہو گئی۔ شام ہونے کے بعد فاروق اعظم قریب جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، میرے سپاہیوں 2 گھنٹہ کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن تم لوگ ابھی تک کچھ نہیں کر پائے، ویسے ہی کہ ویسا مجمع ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تم لوگ کیا میدان میں تلوار کو ڈال دو اور آؤ خیمے کے اندر میں، میدان میں تلوار کو ڈال دیتے ہیں اور خیمے کے جانب فاروق اعظم سپاہی کو بلا کر کے جب چلے آتے ہیں، پوچھتے ہیں میاں یہ تو بتاؤ کیا تم لوگ حق کو مار کر کے آئے ہو، کیا کسی کو ستا کر کے آئے ہو، ماں باپ کو تکلیف دے کر کے آئے ہو؟ ان سپاہیوں میں جواب دے رہے ہیں، یا امیر المومنین، ہم لوگ تو جو ماں باپ کو خدمت نہیں کرتے ان کو خدمت کروا دیتے ہیں، کوئی زمین کسی کا مار دیتا ہے ہم لوگ ان کو دلوا دیتے ہیں، ہم لوگ ایسا کام کیوں کریں گے، ایسا کام ہم لوگ نہیں کریں گے۔ تو کہا پھر جیت کیوں نہیں پائے؟ 2 گھنٹہ کا وقت دیا تھا، 2 گھنٹہ کا ٹائم دیا تھا، میدان میں کامیابی کیوں نہیں مل پائی؟ فاروق اعظم ابھی بول ہی رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے گرد و غبار اڑاتا ہوا آواز دے رہے ہیں، یا امیر المومنین جواب ہم دیں گے، یا امیر المومنین جواب ہم دیں گے، یہ لوگ فتح پانی کیوں نہیں پا رہے، کامیاب کیوں نہیں ہو رہے، جواب ہم دیں گے، ہم کو پہنچنے دیا جائے۔ امیر المومنین کے بارگاہ میں وہ گھوڑ سو سوار آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کر رہے ہیں، یا امیر المومنین یہ لوگ قیامت تک لڑیں گے، یہ لوگ قیامت تک لڑیں گے، لیکن فتح یابی نہیں ملنے جا رہی، کامیابی نہیں ملنے جا رہی۔ کہا وجہ یہی ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنت یہ لوگ کل عصر کی نماز میں بھول گئے تھے، چھوڑ دیے تھے، مسواک کرنا بھول گئے تھے، مسواک کرنا چھوڑ دیے تھے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنت کو ترک کر کے میدان جنگ میں لڑنے کے بعد
बाद अब देख लो मुसलमानों, फतह नहीं मिल रही है, कामयाबी मिल रही है। अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं तलवार को जमीन पर रखो और जाओ, पहले नबी की सुन्नत को अदा कर लिया जाए। मुसलमानों जरा जज्बे से सुनो, मोहब्बत के सुनो। जवान किस्म के सहाबा जो थे साख की बालाई पर चढ़ जाते हैं और साख को ज़ेर करते हैं, मिसवाक तोड़ते हैं, और मिसवाक तोड़ने के बाद जब मिसवाक ज़बान पर लगाते हैं, मुंह पर लगाते हैं, काफिरों के वफद से, काफिरों के मजबे से, काफिरों की फौज से एक आदमी आता है और आने के बाद देख करके फौरन दौड़ करके चला जाता है और जाने के बाद कहता अब हम लोग जीत नहीं पाओगे, अब हम लोग जीत नहीं पाओगे। कहा क्या हो गया, क्या हो गया? आदमी बढ़ा लिया है, घोड़ा बढ़ गया है, तलवारें बढ़ गई है, क्या हो गया, क्यों नहीं जीत पाएंगे? कहा इसलिए जीत नहीं पाएंगे कि कल तक सुनते थे लोग जब मुसलमान किसी को कत्ल करने के लिए जाते थे तो तलवार में पाल दिया करते थे, तलवार में धार दिया करते थे। आज उन लोगों को मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूं, वो लोग अपने दांत को धार दे रहा है, अपने दांत को धार दे रहा है। उन लोग से मुकाबला करना बड़ा ही मुश्किल है। लिहाजा सरकार की सुन्नत को जब अदा करके तलवार लेते हैं और मैदान जंग में जब तलवार लेकर के उतर जाता है, तारीख बता रही है मुसलमानों, कुछ ही देर के बाद मैदान फतह हो जाते हैं, मैदान में कामयाबी मिल जाती है और इस्लाम का झंडा दमिश्क के शहर में गाड़ करके फिर मदीना चले चले आते हैं। अंदाजा करो नबी की सुन्नत। आज देख लीजिए नबी की सुन्नत से आज हम लोग कितने प्यार कर रहे हैं, कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों नबी की सुन्नत को अपनाओ, नबी की सुन्नत पर चलो, नबी की सुन्नत पर क्या है कि अमल करके दुनिया में और आप दुनिया में चलते रहो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी और वहां भी कामयाबी मिल जाएगी। सुनो एक बात बता करके मैं खत्म करना चाहता हूँ, मोहब्बत से जरा कह दो सुभान अल्लाह, जरा हाथ को सब बुलंद करके कहिए। देखिए बड़ी मोहब्बत के साथ समात कीजिए हजरात, सुन्नत रसूल कितनी अहम है, कितनी मुकद्दस है, कितनी बाबरकत चीज है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के एक सहाबी, हुजूर के एक सहाबी भाई, देखिए मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं। सुनो आज हमारी मिजाज और हमारा रवैया और हमारी हालात क्या हो गई है। आज हर काम हम लोग नुमाइश के लिए कर रहे हैं, शादी है तो नुमाइश के लिए, ब्याह है तो नुमाइश के लिए, जलसा जुलूस है तो नुमाइश के लिए, खाना खिला रहे हैं तो नुमाइश के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। बकरीद का मौका होता है, लोग बड़का बड़का खस्सी लाता है, घुंघरू बांध देता है, फीता बांध देता है और चौक चौराहे पर लटका करके बगल में बैठ करके तारीफ सुनता रहता है। किनका है? जुमन मियाँ करे बाप रे बाप इतना बड़ा खस्सी लिया, कुर्बान मियाँ का इतना बड़ा खस्सी ले लिया, तारीफ सुनता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नुमाइश का काम ना अल्लाह को पसंद है ना रसूल पाक को पसंद है। अल्लाह कबूल करता है ना रसूल पाक कबूल करते हैं। नुमाइश का दिखावा का अमल ना अल्लाह को कबूल है ना नबी को कबूल है। इसलिए मुसलमानों जो भी अमल करो, जितनी भी अमल करो, खुलूस के साथ करो और लिल्लाहियत के लिए करो, अल्लाह की रजा के लिए करो। इंशाअल्लाह एक ही सजदा करोगे वो सजदा काबिल कबूल होता है। इसलिए मुसलमानों चूंकि वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, जो बात को आगे बढ़ाऊं, शहंशाह तरन्नुम मौजूद है, खतीब आजम हिंदुस्तान मौजूद है। अभी इन दोनों के आगे हम और बात को क्या बढ़ाऊं, बस एक बात कह के गुजरना चाहता हूं मुसलमानों, जरा मोहब्बत से हाथ को फैला में लहरा कर कह दो सुभान अल्लाह। एक बात सुन लो, सहाबी मस्जिद में है, सरकार खिताब फरमा रहे हैं, नबी खिताब फरमा रहे हैं, नबी तकरीर कर रहे हैं। सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो, एक आदमी आने वाला अभी मस्जिद में है, मस्जिद में एक आदमी आने वाला है, वो उसको तुम लोग देखना, उसको तुम लोग देखना, वो जन्नती आ रहे हैं, जन्नती जन्नती सुभान अल्लाह, जन्नती आ रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो शख्स चले आए, सहाबी मस्जिद में दाखिल हो गए, पलट करके सब देखने लगे, देख करके सुन्नत से फारिग हो करके चले गए। लेकिन एक सहाबी टोह में बैठे रहे, ताक में बैठे रहे कि कब ये निकलेंगे कि इनके साथ होएंगे और
मुसाफा करेंगे, मुआनका करेंगे और इनके घर जबरदस्ती का हम मेहमान बनेंगे। ये क्या करता है कि सरकार ने इनको जन्नती बताया? ये कौन सा अमल करता है कि नबी ने जन्नती बताया है? मियाँ सुन लो, यही मर्ज है, यही बुराई है जो सबके सीने में आज भी मौजूद है और न जाने कब तक ये मौजूद रहेंगे। रमजान करीब है, दिल को साफ कर लो, दिल को साफ कर लो। रमजान का महीना आ रहा है मियाँ, दिल अगर साफ नहीं होंगे, दिल अगर साफ नहीं होंगे तो नमाज काबिल कबूल है, ना रोजा काबिल कबूल है, ना हज काबिल कबूल है। दिल को साफ करके खुदा की बारगाह में सजदा करो। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, वो नमाज भी कबूल, वो रोजा भी कबूल, वो हज भी कबूल। अगर इन तमाम चीजों से बरी नहीं हो पाओगे तो मुसलमानों, मुर्गे की तरह ठोक देना ही कामयाब होगा। मुर्गा का ठोक लगाना जिस तरह होता है वही हाल हमारी और आपकी नमाज की हो जाएगी। सरकार फरमाते हैं मस्जिद में आने वाला है, आगे सहाबी देख देख कर चले गए, लेकिन एक सहाबी बैठे रह गए, एक सहाबी बैठे रह गए ताक में, टोह में। जब ये सुन्नत पढ़ करके, नमाज पढ़ करके जब जाने लगे तो वो जो टोह में लगे हुए थे वो भी पीछे पीछे जाने लगे, वो भी पीछे पीछे जाने लगे। कहते निकलने के बाद कहते अस्सलाम वालेकुम हुजूर, तो पलट करके जवाब देते वालेकुम सलाम। कहा हुजूर एक बात का, क्या बात है? कि आपके घर में हम मेहमान बनना चाहते हैं। क्या बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी। चलिए लेकर चले गए। सुनिए मुसलमानों, लेकर चले गए। जाने के बाद दिन भर खाते थे, पीते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब रात को सोने की बारी आती थी उनका चरपाई, उनका बिस्तर ये इनका बिस्तर ये, और रात भर चादर यहीं तक ओढ़ते थे और हुलक हुलक करके देखते कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? सरकार ने जन्नती बताया है, ये क्या कर रहा है? कौन सी इबादत कर रहा है? कौन सी रियाजत बंदगी कर रहा है? कुरान की तिलावत कर रहा है, तहज्जुद पर क्या कर रहा है? लेकिन रात भर देखता था वो सोया हुआ। 3 दिन तक रहे, 3 दिन तक, तीनों दिन यही मामला। चौथा दिन ये अपना बोरिया बिस्तर बांधे और निकलने लगे। जब जाने लगे, बस यहीं पर सुनो, जब जाने लगे तो जन्नती सहाबी कहते मियाँ आए थे, खाए पिए रहे और जा रहे हो? कहा हुजूर जा रहे हैं। काहे के लिए आया था, क्या मामला था? क्या हुजूर हम आए थे इसलिए कि सरकार ने जो आपको जन्नती बताया है, हम देखने के लिए आए थे कि आप अमल क्या करते हैं, कौन सी नेकी करते हैं, वही देखने के लिए हम आए कि सरकार ने आपको जन्नती बताया है, यही अमल हम देखने के लिए आए, लेकिन कुछ भी नहीं पाए, इसलिए हम जा रहे हैं। कहो ये मामला है। कहा चलो पलटो, बस देखो सुनो, यही पर सुनो। ये मामला कहा? उस आदमी को लेकर घर आए। सुनिए मुसलमानों, खुदा की कसम अगर जर्रा बराबर भी ईमान आपके अंदर में है तो मियाँ हसद को, जलन को, बुग़्ज़ को, ग़ीबत को, इन तमाम चीजों को दिल से निकालो। रमजान करीब है, रब की बारगाह में सर पर सुजूद हो जाओ और दुआ करते रहो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका रोजा और आपकी नमाज अल्लाह कबूल फरमाता हुआ नजर आएगा। जब पलट करके घर ले आए, कहा सुनो, एक अमल मेरे पास है और उसी अमल को देख करके सरकार ने हमको जन्नती बताया, नबी ने हमको जन्नती बताया है। ना हमारी नमाज को देख करके, ना रोजा को देख करके, ना इबादत को देख करके जन्नती बताया है। एक अमल है, उसी अमल को देख करके सरकार ने हमको जन्नती बताया। कहा क्या है, क्या अमल है, क्या अमल है? तेजी करने लगे। क्या वो अमल जाहिर में नहीं है, बातिन में है। वो अमल जाहिर में नहीं है, बातिन में है, छुपी हुई है। क्या है? सुनिए यहां पर जरा मोहब्बत से। कहा क्या है? कहा अमल ये है कि ये दिल को मेरा रब ने साफ बना दिया है। ना हसद है, ना जलन है, ना कीना है, ना कपट है, ना चुगली है, ना गीबत है। ये दिल मेरा साफ है और इसी साफ दिल को देख करके सरकार ने हमको जन्नती बता दिया है। अंदाजा करो मुसलमानों, इसलिए दिल को साफ कीजिए। नमाज रोजा बहुत आला चीज है, बहुत आला चीज है, बहुत आला चीज है, लेकिन दिल को साफ करके नमाज पढ़ोगे, दिल को साफ करके रोजा रखोगे, तब जाकर के काबिल कबूल होते हुए नजर आएंगे। वरना दिन भर में झूठी, दिन भर रात भर में ग़ीबत, चुगली, ग़ीबत, बोहतान, हजारों किस्म की बुराइयां अगर जन्म ले लेती है आपसे, तो नमाज भी आपको पलटा करके मार दिए जाएंगे, रोजा भी पलटा करके
مار دیے جائیں گے، حج بھی پلٹا کر کے مار دیے جائیں گے۔ اس لیے دل کو صاف رکھو، کینہ کپٹ سے پاک رکھو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد